Namaskar, a very warm welcome to all of you. I am Jaideep Sharma from School of Social Sciences. With me, I have my colleague Dr. Pawan Kumar Saini. Our dear students also have joined us in the studios today, and we are here to discuss a topic BLS internship. So, this is an internship program for Bachelors of Library and Information Science, and we'll be discussing about this program. This is a particular course that is BLII 230, and we'll be discussing the what, why and how of internship. तो आज हम बात करेंगे कि इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप की डेफिनेशंस क्या हैं, इंटर्नशिप का क्या फ़ायदे हैं, इंटर्नशिप क्यों हो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम्स में, इंटर्नशिप कैसे की जाए और इंटर्नशिप के ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे. आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं दूर दूर से, हमारे BLS स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड अस at different regions and areas of the country, we will be telling you about all details of internship. We'll start with the concept of internship. We'll talk a little bit about the definitions of internship. Then we'll go into the details of internship. So let us begin with a few definitions. As you see here on your monitor, that there are three different terms that are in use for internship. One is internship, the other is apprenticeship, and the third is traineeship. And we have given the source also for all these terms. If you consult the different reference sources, you will come to know that these are related terms with minor differences that exist between them. We'll be talking mainly on internship, and we'll tell you about how these terms are related, how in different contexts these terms are talked of when you see literature around you. Basically, all these three terms are related to the fact that when we work in a particular area, we need to be exposed to the field also. We need to be exposed to the work area. So when we study things, how these are contextualized in the real field, in the real life, we come to know when we are exposed to all these things during internship or apprenticeship or traineeship. Basically, if we go into one or two definitions from standard sources, you see here I quote from the Cambridge Dictionary that a period of time during which someone works for a company or an organization in order to get experience of a particular type of work. This is one definition. There is a slight difference in the second definition that I again quote here. I quote, a period during which a student or new graduate gets practical experience in a job, for example, during the summer holiday, unquote. So see the difference between these two definitions. The second definition talks of the time also when you do internship. A student, because generally free during a particular time period during summer holidays, and it so happens in different areas, particularly the professional fields that are there. Like you talk of library information science, you talk of law, you talk of engineering, you talk of medicine, you find internship is an important component. Moreover, these components have gained more importance or have caught our attention more, particularly in view of the new national education policy that we have got in 2020, wherein we talk of learning which is related to our work, which is related to skills, which is related to sharpening our skills, making our education more meaningful, more contextualized, and therefore the importance of internship. Internship has been specifically stressed upon in the new National Education Policy 2020, and it is as a result of the implementation of this policy in our university, Indira Gandhi National Open University, that we have introduced this component of internship in our bachelor's degree as well as master's degree programs, and we are already through the first year of internship. And since the new batch has started, we thought of having a session on internship because of the little difficulties that our students face. Therefore, we thought of having a session
particularly for the bachelor's degree students. We'll have another session for our master's degree students also on internship. I read out one more definition because at times you find that another term, that is apprenticeship, that has been used, and you find portals also existing on apprenticeship. Government of India portal is also there, wherein you can register yourself. All students, kindly note that you have different types of apprenticeship available through these portals. These are mostly paid also, and therefore if you see here in this slide, it is also given to future employees. This is also paid. There is also slight difference that when you talk of American context, they use the term apprenticeship, whereas in the European environment they prefer to use the term apprenticeship. There is another slight difference, that apprenticeship is little longer in duration compared to internship, and also that it is for a particular job. So this is theoretical concerns, because at times we get confused that different terminology that is used, and therefore we thought of making you aware why slight differences are there when you make use of these terms. Though in our day-to-day work, in our general life, we use these terms interchangeably most of the time. We have made use of the term as internship, and we want this to be really utilized by our students, and this is while they are doing their course, and we'll tell you when they have to do it, because the logic is that they get to know about the contents of the course, the different courses that are there as part of bachelor's degree, and once they come to know about all these courses, they are little aware of the field of library information science. They are a little aware of the different theoretical concepts. They are also able to realize, yes, this is the area where internship is going to help me. Yes, they have developed an inquisitiveness to see how things are happening there in libraries and information institutions. Therefore, we caution our students to undertake internship after, say, 2 or 3 months of joining their program, so that they are really able to get the maximum benefit of internship. Now, I will request my colleague Dr. Pawan to start with the details and schedule of internship, and Dr. Pawan, I think you would like to, देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये प्रोसीजर क्या है. मोस्टली जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो BLIs के स्टूडेंट जो कोर्स आज हम इंटर्नशिप पे प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोसीजर क्या होगा कि इंटर्नशिप कैसे करना होगा. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती होगी, तो प्रोसीजर सिंपल है कि हम आपको एक रीजनल सेंटर से या हेड ऑफिस से आपको एक रिक्वेस्ट लेटर, एक अलाउ लेटर आपको इशू करवाना है. वो आपको जाके आपको लाइब्रेरी में जाना है. कौन कौन सी लाइब्रेरीज आप इंटर्नशिप कर सकते हैं हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, लाइक यूनिवर्सिटी हो सकती है, स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेज, बट उन लाइब्रेरीज में जाना है जो हमारी एक SOP है ई ज्ञान कोर्स के ऊपर आप जाएंगे तो उसमें क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि वो लाइब्रेरी का स्टैंडर्ड क्या हुआ. लाइब्रेरी सारी अच्छी होती है, बट मिनिमम स्टैंडर्ड हमने एक फॉलो किया है कि एटलीस्ट आपको कुछ सीखने को मिले. लाइक उसके अंदर 5000 बुक्स हो, ट्रेन करने वाला जो सुपरवाइजर, जिसको हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि आप उसके अंडर में काम करेंगे 1 मंथ के लिए. जो ड्यूरेशंस रखा है हमने इंटर्नशिप का वो 1 मंथ के लिए रखा. सर ने ऑलरेडी मेंशन किया कि न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकस कर रही है उसके बेनिफिट्स भी, क्योंकि स्पेशली हम देखें कि जो इंटर्नशिप्स करने के बाद में स्टूडेंट्स को जो बेनिफिट होगा, एक तो ये होगा कि उसको वर्क एक्सपीरियंस होगा. वर्क एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली वो, क्योंकि जब हमारा जो कोर्स है, जो BLIs जो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, वो टेक्निकल है. क्योंकि जब तक आप कुछ वर्ड्स टेक्निकल सुनते हो, पढ़ने हो, जब आप प्रैक्टिकली देखते हो लाइब्रेरी में जाके कि क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सी यूज़ हो रही है, लाइब्रेरी ऑटोमेशंस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, क्लासिफिकेशंस रैक्स के ऊपर बुक्स किस तरह से अरेंज किए, तो वो हम प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो जिन थ्योरी एग्जाम में आप लिख पाएंगे तो वो भी आपके हेल्पफुल रहेगा. अनदर बेनिफिट ये होगा कि जब आप इंटरव्यू देंगे तो आप इजीली अपना कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, वो बताएं. दूसरा बेनिफिट हम कह सकते हैं इसके अंदर कि आपको नेटवर्क
बनेगा। नेटवर्क इन द सेंस बनेगा कि भी आप अपने जो कलीग्स हैं उनसे आप इंटरेक्शंस होगा इन फ्यूचर में उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस को अगर मैन पावर की आवश्यकता होगी तो डेफिनेटली आपको उसको आपका उसका वेटेज मिलेगा क्योंकि आप उसके पार्ट रह चुकी हो। तो बेसिकली हाँ, जो प्रोसीजर्स की बात की कि मैंने कहा कि आपको एक सर्टिफिकेट इशू कराना है, उसके बाद आपको लाइब्रेरीज के अंदर जाना है। अब लाइब्रेरीज में जब जाएंगे तो 1 मंथ के लिए आपको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है। उसके लिए हमने एक वर्कबुक स्ट्रक्चर फॉर्मेट आप देखेंगे वेबसाइट्स के ऊपर भी हमने इंक्लूड की, ज्ञान कोश में भी मेंशन किया हुआ है, हम स्लाइड्स में भी अभी दिखा देंगे आपको क्या फॉर्मेट होगा उसका वर्कबुक का। वो आपको फिल करवानी है प्रोसीजर। उसके लिए एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप वहाँ से लेंगे, जो लाइब्रेरियन जो आपको ट्रेन करेगा वहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे। फिर आप उसकी डिटेल रिपोर्ट आप सबमिट कराएंगे। वो डिटेल रिपोर्ट आप प्रिपेयर करके अब उस डिटेल रिपोर्ट का भी फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में आप उसको सबमिट कराएंगे। उसके अंदर बाकायदा हमने जो आपकी वर्क बुक में एक्सप्लेन कर रखा है कि वन ड्यूरेशंस क्या होगा, उसका वर्क बुक का कौन कौन से मॉड्यूल्स है वो आप मेंशन करेंगे। तो सिंपली कहने का मतलब है कि आपको जो वर्कबुक की जो डिटेल आपने फिल किया है उसके और उसके साथ में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट वहां से लाइब्रेरियन आपको इशू करेगा। वो कंपाइल करके आपको सबमिट कराना होगा रीजनल सेंटर के ऊपर। रीजनल सेंटर फिर उसका इवैल्यूएशन कराएगी। ये 100 मार्क्स का, प्लीज स्टूडेंट नोटेड इट कि ये कोर कोर्स है हमारा, ये प्रैक्टिकल कोर्स है बट इट इज ए कोर कोर्स। आप जैसे लाइक अदर कोर्सेज हमारे जो है वो 100 मार्क्स के, सेम ये भी 100 मार्क्स का है। इसके अंदर आपको कहीं एग्जाम नहीं देना है बट आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो इसका टाइम ड्यूरेशन हमने रखा है वही 1 मंथ का, और 1 मंथ पे 5 आवर्स पर डे हम बात करते हैं। 100 आवर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। वो एक प्रोसीजर होगा आपका, उसके बाद आप सबमिट कराओगे इसके लिए सर। थैंक यू डॉक्टर पवन। तो कुछ चीज़ें और हैं जो मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी डॉक्टर पवन ने आपसे बताया। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू think about which institution where you would like to undergo internship, how to take a decision where will you go for internship. You can go to a library, you can go to a archive, you can go to an information institution, you can also work with a database vendor. You can, when you think of a library, it is your choice. You can do internship in a public library, you can do internship in a academic library. When you think of an academic library, you can better do it in a college library or a university library. School library is very important, but then you should avoid doing it in a school library because you generally in schools you have one-man libraries and the person will not be able to really devote time for you to really supervise you for internship. Moreover, such libraries are open for a limited time, maybe for first shift or second shift. Therefore, try to avoid school libraries. Nothing to demean school libraries. They are very important part of libraries, but then try to avoid doing it in school libraries. Similarly, if you are doing it in a public library, जनरली हमारे पास स्टूडेंट आके अक्सर क्या करते हैं, जब वो चूज करते हैं लाइब्रेरी इंटर्नशिप के लिए, तो उनका हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि मेरे घर से बहुत दूर है, मैं पास की लाइब्रेरी में करना चाहता हूं. देखिए, दिस शुड नॉट बी द क्राइटेरिया. Distance from your residence should not be a criteria. I would like to inform you that in the last batch there were some students who did internship in a different city also, in a different state also. So they realize the importance of internship. They realize the importance of doing internship in a good library. What is the definition of a good library? You can very well decide. The definition of a good library is, the first factor is, the first criteria is, it should be a library of your choice. You would like to make your professional career in a research library, you should join a research library for internship. You want to work in a public library, try to get internship in a public library. So you want to work in a media library, go to a media library for internship. You want to do internship in a library of national importance, maybe you would like to get internship in National Library of India. You all know it is in Kolkata, so you can go and do internship there also. So this is the first
the first factor to make a choice which library. Please do not make it a criteria that it has to be near your house. That should not be the criteria. Number two, now you have chosen a library or information institution where you would like to undergo internship. Then the next is you need to have a letter, a recommendation letter from the institution. You can get it from your regional center. You can request your regional center. They will give you a letter. You have to take that letter to the institution where you want to do internship. They will allow you. Our BLS online students, you all know that we have online program also. They can put in a request to us at ignulis@gmail.com. We will send a recommendation letter to them and they can produce it to the institution. There they will undergo internship. So this is the next step. The third step is that you have to go to the institution. Before going to that institution, you have to read the standard operating procedure, what he was referring as SOP. This is available at egyankosh.ac.in, and you will see that when you reach the link BLII 230, the moment you click it, you will come to know that we have placed their internship procedure in detail for BLIS as well as MLIS. You have to click the link BLII 230. You will immediately reach there. There you will find three different alternatives: internship, alternate, and in alternate also you will have two. One is library based and the other is literature survey. We will deal with all these in detail in few moments from now. Now this is the next thing, that you have downloaded that SOP. If you feel it is convenient, you may take a printout or you have it saved in your device, because you need to consult that SOP from time to time. बार बार आप उसको पढ़ेंगे, बार बार आपको उसको रेफर करना पड़ेगा, इसलिए वो आपके पास उसकी एक कॉपी होना बहुत जरूरी है. That is very important. You read it from 1 to last and you will see that everything has been clarified in detail. आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. I would like to clarify here for all of us that there is a doubt in the minds of some students that it is for 3 months. No, internship is for 1 month. 5 hours every day for 20 days in a month. You have to do 100 hours of internship in the institution. Today also I got a call from a student that there was a misinformation amongst our students that it has to be done for 3 months. It has to be done for 1 month for this particular course. You may continue your internship if the institution allows you for even 3 months or 6 months. It is your choice. So there is no such bar from IGNOU that you cannot do for more than 1 month. अगर वो institution कहेगा कि हम आपको continue करना चाहते हैं, it is always in your benefit, to your advantage, because of late we have seen that after IGNOU has introduced internship, institutions have also realized, yes, these are our potential employees, these are of benefit to us. They request our students to continue their internship, and our students are continuing for 3 months, 6 months, even beyond that. So this is the next thing that you have to remember. तो आपने चूज कर लिया आप कहाँ करना चाहेंगे, आपने हमसे लेटर ले लिया, अब आप वहां लेटर लेके जाएंगे. Today again there was a question that I will go to tomorrow, will they place me on internship from tomorrow itself? देखिए, this depends on the availability of slots with the institution. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, वो वहाँ इंटर्नशिप कर रहे होते हैं और इंस्टीट्यूशन की लिमिटेशन है. दे मे हैव 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स एट ए टाइम. देयरफॉर दे प्रिपेयर ए रोस्टर और उस हिसाब से वो आपको बुलाएंगे. इसलिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं अगर वो आपसे वेट करने को कहेंगे, और अकॉर्डिंगली यू हैव टू ज्वाइन द इंस्टीट्यूशन. जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब वो आपकी इंटर्नशिप विल स्टार्ट देयर. नाउ व्हाट ऑफ इंटर्नशिप? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग. ज्वाइन करने से पहले आपको जो पता होना चाहिए इंटर्नशिप के बारे में, हमने ये बता दिया आपको. आपको ये भी बता दिया दैट यू रीड द एसओपी.
अब हम ये बात करेंगे कि एसओपी में क्या दिया हुआ है और आपको कैसे ये सब कुछ करना है. तो लेट अस टॉक ऑफ these in detail. Before that, Dr. Pawan will tell you about the opportunities that we have. थोड़े एग्जाम्पल्स हम आपको बता देते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़ इंटर्नशिप कहाँ कहाँ से मिल सकती है, जैसे ऑलरेडी सर ने पहले भी मेंशन किया था. आप देखिए, मैंने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ आप सभी जानते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के इंडिया में हम देखते हैं कि 1027 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर. इसके अलावा NITs, IITs, जैसे सर ने कहा पब्लिक लाइब्रेरीज के अंदर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो. IITs के अंदर वहाँ पर आपको करने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, जैसे मैंने कहा कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आप ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी, कुछ अच्छी गुड जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी आपको इंटर्नशिप आप कर सकते हो. इसके अलावा जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, RLF की लाइब्रेरी सर ने मेंशन किया था, नेशनल लाइब्रेरियन है, वहाँ पर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो. तो ये अपॉर्चुनिटीज. इसके अलावा जैसे कहा डाटा जो पब्लिशर के पास भी आजकल देखिए कि न्यूज़ मीडिया, जैसे इग्नू के अंदर भी देखें कि आपको जो है अलग से लाइब्रेरी मिलेगी, स्पेशल लाइब्रेरीज हैं कुछ हमारी हैं, उसमें भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो. और इंटर्नशिप के लिए इग्नू ने सर के अफोर्ड से हमने बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के साथ में, जैसे लाइक AICT के साथ में एक MOU हुआ है कि इंजीनियरिंग, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके साथ बाकायदा एक MOU हो चुका है. इसके अलावा हमारा प्रोसेस में है कि जो RLF है उनके साथ में भी प्रोसेस है. हमने रिक्वेस्ट की थी कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और जो इंस्टीट्यूशन जो ऊपर लाइब्रेरी एसोसिएट है उनके पास लाइब्रेरी है, तो उनसे हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट की इग्नू के बिहाफ पर, वो अलाउ भी कर रहे हैं. इवन कई बार तो हमारे साथ ये देखने को आता है सर कि स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस कहता है, मेल करता है कि आप इंटर्नशिप के लिए, क्योंकि देखिए दोनों को फ़ायदा है, इंस्टीट्यूशंस को भी फ़ायदा. इंस्टीट्यूशंस को बेनिफिट्स इसलिए है कि कुछ उसको हेल्पिंग मिल जाती है, मैन पावर का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि ओबियसली कई बार क्या होता है कि उस इंस्टीट्यूशंस के रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में टाइम लगता है और मैन पावर चाहिए. कि लाइब्रेरी की देखेंगे, जब आप लाइब्रेरी कोर्स करके जाएंगे तो आपको लगता होगा, जैसे आप स्कूल्स लेवल, कॉलेज लेवल में देखा हो कि लाइब्रेरी ऐसा लगता है कि हिडन जॉब है. आप देखते हो लाइब्रेरी स्टाफ जितने भी वहाँ पर लाइब्रेरियन होंगे, जो भी कैटेगरी असिस्टेंट या जो असिस्टेंट डिप्टी लाइब्रेरियन, तो वो देखता है कि सीटिंग में बैठा हुआ था, बट वो सीटिंग में बैठने के बाद में भी वो इतना जॉब होता है लाइब्रेरीज के अंदर डेली के डेली यूजर्स की. और लाइब्रेरी का जो हमारे जो यूजर्स की जैसे से रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अब करंट एरिया में लेटेस्ट हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज के यूजर्स की डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट डिमांड, उसके अकॉर्डिंग हमें सोसाइटी में लाइब्रेरी सर्विसेज को, क्योंकि जैसे सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी को चेंज करना पड़ता है, तो आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है. तो अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर बेसिकली हम ये क्राइटेरिया मान के चलते हैं कि जहाँ भी जिस इंस्टीट्यूशंस में लाइब्रेरी हो, चाहे वो किसी टाइप का भी इंस्टीट्यूशंस हो, वो आपका अलाउ करेगा, आपको सिंपली वहाँ पर जाना है. इसके अलावा आप जो अदर एजेंसीज हैं, जैसे लाइक जो भी सर ने कहा पब्लिशर्स के पास डाटा, क्योंकि देखिए जैसे आर्काइव्स हैं, आप देखेंगे म्यूजियम है, वहाँ पर भी लाइब्रेरी होती है, तो वहाँ पर भी आपको एक्सपोजर मिल सकता है. क्योंकि वहाँ का, क्योंकि हमने जो SOP जो हमने मेंशन किया उसमें क्लियर कट मेंशन किया कि आपको जो अच्छी लाइब्रेरी, जो स्टैंडर्ड की, जैसे गुड लाइब्रेरी की बात करते हैं, पर्पज़ के अल्टीमेट कि आपको वर्क एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, आपको एक्सपोजर होना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको नीड है, क्योंकि अल्टीमेट आपको, जैसे पहले भी कहा कि आपको जॉब करना, उसके लिए हेल्प. इवन जब हायर स्टडी करते हैं तो आप देखिए दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर भी इंटर्नशिप प्रोग्राम, बट यहाँ हम जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जैसे ही BLIS में एडमिशन्स लेते हैं, जैसे हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट ने अभी जनवरी के अंदर एडमिशन्स लिए, तो वो 2-3 मंथ्स एक बार थोड़ा थ्योरेटिकल देखिए, उसके स्टडी मटेरियल को पढ़िए, उसके बाद में आप लाइब्रेरी में चाहिए, जिस लाइब्रेरी में भी आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं उसमें करें. क्योंकि उससे आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा, आप कुछ डाउट्स होंगे आप क्लियर कर पाएंगे वहाँ पर, जिससे हेल्पफुल रहेगा कि आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, इन फ्यूचर भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो सिंपली ये कि DRT, जैसे अभी रिसेंटली एक फ़ोन आया कि हमने जो है साइंसेज के अंदर DRDO देख लीजिए, CSIR देख लीजिए, उन्होंने कहा कि हम आपके बच्चों को अलाउ करेंगे इंटर्नशिप. उनकी एक लिमिटेशंस होंगी, क्योंकि उनके पास भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, उन्होंने अप्रूवल ले ली, उन्होंने
उन्होंने बाकायदा इन्फॉर्म किया कि आपका अप्रूव, हमने हमारे कंसर्न अथॉरिटी से हमें अप्रूवल मिल गई है, हम स्टूडेंट को कुछ जो इंस्टीट्यूशंस है वो स्टाइफंड भी दे रही हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस है वो स्टाइफंड नहीं देती। हमने कहा कि उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम फाइनेंशियल बर्डन न तो किसी इंस्टीट्यूशंस पे डालना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस हो सकता है कि वो स्टाइफंड देंगे आपको, बट हमारे कोर्स के लिए 1 मंथ के लिए जो कंपलसरी रखा है इंटर्नशिप, उनके लिए स्टाइफंड रेयर केसेस मिले कुछ इंस्टीट्यूट दे। लेकिन आफ्टर आप अगर BLIS के करते हो या MLS प्रोग्राम करते हो, उसके बाद में भी आपको अपॉर्चुनिटी एज ए जॉब की भी मिल सकती है और इंटर्नशिप भी मिल सकती है। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है अपना एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, उसके अंदर भी आपका देखेंगे कि इंटर्नशिप नहीं, IIT दिल्ली देखिए, IIT दिल्ली भी इंटर्नशिप करवा रही है बच्चों का, लेकिन वो इंटर्नशिप किनको करा रही, जो ग्रेजुएशन या जो हमारी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको करा रही। तो अपॉर्चुनिटीज देखेंगे हमारे कोर्सेज के अंदर नो डाउट इज अनलिमिटेड। रिसेंटली देखिए कुछ वैकेंसीज अभी हर स्टेट्स के अंदर निकलती जा रही, बट उसका बेनिफिट किसको होगा, जिसने, क्योंकि प्रैक्टिकली ये हमारा पूरा का प्रोग्राम प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर है, तो ये हमारे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है। प्रोसीजर आपको क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रोसीजर्स आपको क्या करना है। अब ये आता है कि जब इंटर्नशिप आपने, सर ने मेंशन किया कि आपने इंस्टीट्यूशन चूज कर लिया, अब वहाँ जाके आप वर्क कर रहे हैं, अब जो वर्क किया हुआ है उसको हमने क्या किया कि आप देखेंगे SOP के अंदर उसको एक मॉड्यूल फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में उसको हम डिवाइड कर दे। क्योंकि देखिए लाइब्रेरीज के अंदर जब हम थ्योरेटिकल आप लोग पढ़ेंगे तो उसे वेरियस सेक्शंस को डिफाइन किया है। लाइक सबसे कहते हैं कि भाई एक्विजिशन सेक्शंस है ना, जिसको ऑपरेशंस हम क्या, ऑटोमेशंस की बात करें, डिजिटाइजेशंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की, ये सारे के सारे सेक्शंस हम डिवाइड करते हैं, पढ़ते हैं लाइब्रेरीज के अंदर। मॉड्यूल, जैसे मॉड्यूल भी वर्ड भी यूज करते हैं, तो उस सेक्शंस में पर्टिकुलर, जैसे लाइक आपको 1 सेक्शंस में लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो वहाँ पर पर्टिकुलर एक सेक्शंस के अंदर वहाँ पर आपको 1 वीक वहाँ पर वर्क करना है। उस वर्क को आपको करने के साथ साथ वहाँ प्रैक्टिकली आप करके देखेंगे, साथ साथ में जो आपको वर्क बुक फिल करनी है वो आपको डेली की डेली मेंटेन करनी है आपको। उसमें उस लाइब्रेरी ने जो आपको जो ट्रेन कर रहा है, जिसको हम इंटर्न सुपरवाइजर वर्ड यूज दिया है, वो आपको वहाँ पर साइन करेगा डेली के डेली ने, आप पूरा वो रिकॉर्ड रखेंगे। उसके बाद में आप उनसे वहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे ना। अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे, उसके साथ आप जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो जाएगा, 1 मंथ आपने कंप्लीट कर लिया, तो इससे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको यूज़ करना पड़ेगा जो हमारा ई ज्ञान कोर्स पे रखा हुआ है। फिर भी आपका अगर डाउट है, मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, उसके अंदर आपको लिखना है कि एब्स्ट्रैक्ट किस फॉर्मेट में, उसे कंटेंट का स्ट्रक्चर फॉर्मेट हमने मेंशन किया हुआ है, जो आप स्लाइड में आप देख सकते हैं, मैं आपको स्लाइड्स पे दिखा सकते हैं। उसके अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो जिसमें के अंदर सर्विसेज की बात आई, सर्विसेज की पहले का हमने कहा ऑपरेशंस में का एक्विजिशन सेक्शंस के बाद में एक्सेसनिंग। जैसे लाइब्रेरीज के अंदर जो हम जितने भी बुक्स का ऑर्डर करते हैं, बुक प्लेस करते हैं, तो उनको हम क्या था अक्वायर कर रहे हो, तो अक्वायर करते हो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाता है कि लाइब्रेरीज के अंदर कितनी बुक्स परचेज करी, उसका प्रॉपर एक रिकॉर्ड रखते हैं। अगर पीरियोडिकल किया है तो पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद में हम उसकी जिसका एक्सेसनिंग करेंगे, एक्सेसनिंग एक रजिस्टर होता है जिसको परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसमें एक्सेसन नंबर हम मेंशन करते हैं। इसमें कह सकते हैं कि बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स हम इंक्लूड करते हैं कि टाइटल्स क्या है, उसका ऑथर, पब्लिशर, एडिशंस कहाँ, सप्लायर कौन था, उसकी प्राइसेस क्या थे, डिस्काउंट क्या, तो वो सारे के सारा रिकॉर्ड हम एक्सेसन रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करें। इसके बाद में हम उसका जो टेक्निकल प्रोसेस हमारा जो लाइब्रेरीज का होता है, वो हम टेक्निकल प्रोसेस के अंदर क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग हम वर्ड यूज करते हैं, तो हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब आप देखेंगे क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो कौन सी स्कीम यूज कर रही है, डिपेंड करेगा कि वो लाइब्रेरी, वो अगर वो किस टाइप की लाइब्रेरी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है वो DDC यूज करे, मोस्टली तो देखते हैं कि हम DDC, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम जो वो यूज करते हैं। बट हो सकता है कुछ लाइब्रेरीज के अंदर आप UDC, अदर कंट्रीज की लाइब्रेरी में देखो, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या इंडियन स्कीम जब कॉलन क्लासिफिकेशन किया तो वो स्कीम क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम करते हैं उसकी कैटलॉगिंग करते हैं। कैटलॉगिंग के लिए वो पहले ट्रेडिशनल में हम जो कार्ड प्रिपेयर करते थे, आज के कार्ड प्रिपेयर नहीं करते, मोस्टली ऑटोमेशन के आगे भी एडवांस बढ़ चुके, हम डिजिटल की तरफ जा चुके हैं। तो ऑटोमेशन जब करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वो आपको सीखने में, तो वो हमारा इस जो स्ट्रक्चर है इंटर्नशिप का, उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि रिसोर्सेज मैनेजमेंट, क्योंकि ट्रेडिशनल लाइब्रेरी नहीं है आज के लिए। देखेंगे हम पहले कहते थे कि मैनुअल लाइब्रेरी, उसके बाद में पार्सली लाइब्रेरी ऑटोमेशन, फिर फुली ऑटोमेटेड यूज किया। अब हम डिजिटल लाइब्रेरीज की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल ह्यूमन लाइब्रेरी भी वर्ड यूज हम, तो जैसे से रिक्वायरमेंट,
तो ये सेक्शंस हम इसको इंक्लूड, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो इसका ऑपरेशंस के अंदर सेक्शंस मॉड्यूल में डिवाइड किया सर्विसेज का। आप देखेंगे लाइब्रेरीज के अंदर हम यूजर्स को डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे जनरली हम जो आपने सुना भी होगा नाम की लेटेस्ट की बात करें और जो ट्रेडिशनल सर्विसेज हमारी थी, जैसे हम कहते हैं कि रेफरेंस सर्विसेज, ठीक है। रेफरेंस सर्विसेज के अलावा हम कहते हैं इंडेक्सिंग अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, इसके अलावा हम कहते हैं रिप्रोग्राफी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, रिसर्च असिस्टेंट सर्विसेज, जो क्योंकि वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी क्या है। अगर वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो एडवांसेड सर्विसेज है जैसे डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज हम प्रोवाइड करने लगे। पहले रेफरेंसेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्विसेज आपको, जैसे हम कहते हैं कि आई डबल इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। अब इंटर लाइब्रेरी लोन फैसिलिटी आप देखेंगे ना कि देखने को सुनने को मिलता है कि इंटर लाइब्रेरी, लेकिन उस प्रोसेस को जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो सीखने को मिलता है कि वो क्या फॉलो करती है। जैसे डैलनेट प्रोवाइड करता है इंटर लाइब्रेरी, और भी इंस्टीट्यूशंस है वो इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड करता है। वो क्या होता है इंटर लाइब्रेरी लोन, लाइक जैसे मेरी लाइब्रेरी के अंदर वो इन्फॉर्मेशन या वो सोर्सेज और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं किसी दूसरी लाइब्रेरी से बोरो करके यूजर्स को प्रोवाइड करता हूँ, तो इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज करते हैं। ऐसे ही हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज, वो भी। इसके अलावा हम जो लेटेस्ट अब यूज करने की EDD इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज हम यूज करते हैं। इसके अलावा हम करंट अवेयरनेस सर्विसेज, जो करंट अवेयरनेस सर्विस SDA सर्विसेज, तो ये डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज प्रैक्टिकली हम यूजर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आपको उस ऑपरेशन जो स्ट्रक्चर हमारा दिया उसमें आपको वर्क में फिल भी करना होगा, और जब आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे उसमें भी आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आता है कि जो नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में कहा कि भी डाटाबेस से, जैसे देखा जाए कि मैनुअल आपने एक्सेशन रजिस्टर में मेंटेन कर लिया रिकॉर्ड परचेज का, बुक्स का, पीरियोडिकल्स का, अब आप इसको ऑटोमेशंस की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेशंस में वेरियस सॉफ्टवेयर हैं मार्केट के अंदर, देखेंगे आप ओपन एक्सेस और कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर है, वो डिपेंड करता है लाइब्रेरी के ऊपर। अगर कोहा सॉफ्टवेयर ओपन एक्सेस तो वो कोहा के ऊपर कैसे आप उसकी एंट्री करेंगे वो आपको प्रैक्टिकली वहाँ सीखने को मिलेगा। तो वही चीज़ आपको इन फ्यूचर आफ्टर योर कंप्लीशन डिग्री आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बट उस मॉड्यूल में आपको मेंशन करना है, वो रिपोर्ट में मेंशन करना है। इसके बाद में जो लेटेस्ट जो हम डिजिटाइजेशन की तरफ चलते हैं कि लाइब्रेरी जो मटेरियल है उसको बॉन्ड डिजिटल होगा या आप डिजिटाइज कर देंगे। जैसे पुराने ट्रेडिशनल जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको आपको डिजिटाइज करना है। ऑलरेडी अगर ये रिसोर्सेज आप डिजिटल फॉर्म में आप परचेज सब्सक्रिप्शन से ले रखा है तो आप उसमें डिजिटाइज, उसके लिए भी कौन से सॉफ्टवेयर है। तो ये सारा का सारा हमारा इंटर्नशिप का जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो मॉड्यूल के अंदर, इसको में भी देखेंगे जब आगे हम जब इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया देखें तो उस सेक्शंस का हम पर्टिकुलरली मार्किंग कर रखे कि आप इस मॉड्यूल को अगर कंप्लीट करते हो डिटेल के अंदर आप फील्ड मेंशन करते हो तो उसके आपको अलग से मार्किंग दी हो। अगर हम आगे डिस्कशन इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पर जाएंगे तो भी आप उसको मेंशन करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल जो आएगा उसके अंदर इंटर्नशिप के स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर वो हमारा है कि रिकॉर्ड मेंटेन कौन सा रखना आपको है। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन, एक तो वर्क बुक जो मैंने कहा कि वर्क बुक के अंदर ये मॉड्यूल हम मेंशन करेंगे। फिर एक होता है कि डिटेल रिपोर्ट जो आपको प्रिपेयर करनी है उसका फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे कि डिटेल फॉर्मेट में क्या लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि अटेंडेंस भी जरूरी है, क्योंकि ये जो डिटेल वर्क बुक है और आपका जो डिटेल रिपोर्ट आप सबमिट कराओगे, ये दोनों कंपोनेंट क्या होगा कि आपका जो मार्किंग होगी उसमें हेल्पफुल रहेगा। कौन सा, वर्क बुक, यानी वर्क बुक जो आपने डेली वर्क किया वो और डिटेल रिपोर्ट है, उन दोनों को आपको उस जब RC जिसमें भी आप सबमिट कराएंगे जिसमें, तो वो आपको सबमिट उस बेसिस के ऊपर आपका, क्योंकि 100 मार्क्स का है, अगेन आई रिपीट, ये कोर्स एज इट ट्रीटेड हो रहा है तो 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स का उसी के अंदर आपको मेंशन। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा जो इसका फॉर्मेट है कंटेंट का, कि आप किस तरह से रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे उसका। Sorry, I'll just add to what he has said, just as a matter of revision also. थोड़ा सा हम इसको वो कर देते हैं कंसोलिडेट। तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू हैव ए सुपरवाइजर एट द प्लेस वेयर यू विल गो अंडरगो इंटर्नशिप। तो वहां एक कोई आपको सुपरवाइज करेंगे जो कि आपकी रिपोर्ट को साइन भी करेंगे। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। द लाइब्रेरी विल प्रोवाइड यू सुपरवाइजर। वी हैव qualifications for the person, that the person should have at least a master's in library information science with 2-year working experience. Only that person can be your supervisor and that person will sign your report. The other thing is that, as he has mentioned, there is a workbook. So for these 100 hours every day, the time you spend in different sections,
will be mentioned in this workbook and every day the supervisor will sign your workbook. ध्यान रखिएगा, ये जो वर्कबुक है, अभी हम आपको दिखा देंगे वर्कबुक, कि इस वर्कबुक को हमने, ये जो अभी सर ने बताया आपको, दैट देयर आर 4 थिंग्स. वन इज ऑपरेशंस, द अदर इज सर्विसेज, थर्ड इज ऑटोमेशन, फोर्थ इज डिजिटाइजेशन. इन सब के लिए हमने 20 डेज के लिए आपको, फॉर 100 आवर्स वी हैव प्रोवाइडेड ए स्ट्रक्चर which you have to take either a printout or draw it in hand or type it and take a printout, and this every day you have to mention it that you have done this, get it signed by your supervisor every day. Please make a note. ये जो वर्कबुक है आपकी लॉग बुक की तरह है. आप जो काम करेंगे आपके सुपरवाइजर उसको वैलिडेट करेंगे. yes, you have done this. See that on the basis of this you will be evaluated. आपको मार्क्स मिलेंगे इसके बेसिस पे. इससे भी ऊपर यह है, दिस विल रियली हेल्प यू इन योर लर्निंग. दिस इज ए डायरेक्टेड इंटर्नशिप, दिस इज ए गाइडेड इंटर्नशिप जो आप कर रहे हैं. और आपका जो रिपोर्ट बनेगी, जैसे कि अभी सर ने बताया, दिस विल हैव द कंपोनेंट ऑफ वर्कबुक विच हैज बीन साइंड एवरी डे बाय योर सुपरवाइजर एंड द रिपोर्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, एंड इनिशियली द certificate also from the institution. So this is the workbook as you see here on your screen. This is the format of workbook. आप देखेंगे इसमें कुछ कॉलम्स बने हुए हैं. फर्स्ट कॉलम में वीक्स हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4. इसी तरह आगे के जो कॉलम्स हैं उसमें जो हमने 4 चीजें बताई, द ऑपरेशंस, द सर्विसेज, ऑटोमेशन, digitization. Similarly, in the next columns, it is day 1, day 2, 3, 4, 5, like that. For 20 days, you have to, for 5 days in a week, every week, first week, second week, third week, fourth week. So this you can follow. कुछ बारी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं यहाँ स्पेस कम है, you can increase the space. That is not an issue. This format has to be followed, and there is a provision here for signature every day by the supervisor. This is very important. 30 marks are reserved for this workbook. Students often ask us that will the supervisor give marks here out of 30? No, it is not the supervisor who is supervising. This is just the workbook that has to be submitted. While submitting the report, the evaluator will do it later. आपके जो सुपरवाइजर आपको जो इंटर्नशिप करा रहे हैं वो नहीं इवेल्युएट करेंगे. ओनली द वर्कबुक हैज टू बी साइंड बाय हिम, विच हैज टू बी अटैच्ड इन द रिपोर्ट टू बी इवेल्युएटेड. सो आउट ऑफ द 100 मार्क्स, 30 मार्क्स आर फॉर दिस वर्कबुक. ओके, द रेस्ट 70 मार्क्स आर फॉर योर रिपोर्ट, as was mentioned by Dr. Pawan. He will tell you about the format of this report. ये सर, अभी आपने देखा कि जो वर्कबुक का फॉर्मेट है जस्ट एक गाइडलाइन आपको, अगर डिपेंड करता है कि जिस लाइब्रेरी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उसमें कुछ इनोवेटिव सर्विसेज या कुछ नया सेक्शंस इंट्रोड्यूस कर रखा है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये आके एक ब्लूप्रिंट है, आपको जस्ट है ना, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो. ऐसा ये नहीं है कि यही फॉर्मेट आपको यूज करना. आपको लगता है कि देयर आर न्यू सर्विसेज जो हमारे इस और आप सजेशंस भी दे सकते हो, हम इनकॉर्पोरेट करेंगे इन फ्यूचर में. जैसे जैसे बच्चे कहेंगे कि ये नई सर्विसेज, हमें नया सेक्शंस किसी पर्टिकुलरली लाइब्रेरीज के अंदर हम देखने को मिला है, तो हम उसको डेफिनेटली इन फ्यूचर अदर स्टूडेंट्स के लिए वो हेल्पफुल रहेगा. नाउ जो इंटर्नशिप का जो फॉर्मेट हमारा, जो मेनली जो आपका जो मार्क्स मिलेंगे जिसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, वो पूरा का पूरा इस फॉर्मेट के ऊपर है. तो जर्नली पहले मैं फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, फिर आपको जो कॉमन एरर, जैसे हमारा एक बैच अभी इंटर्नशिप बच्चे सबमिट करवा चुके हैं, हम उनके जब मार्किंग कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि कॉमन मिस्टेक्स हो रही है, सभी बच्चों से नहीं हो रही, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी हो रही है और नहीं करनी चाहिए बच्चों को. कॉमन मिस्टेक है, कंटेंट मिस्टेक क्या हो रही है, लेटर ऑन डिस्कस. बट फॉर्मेट हमारा जो है इंटर्नशिप का रिपोर्ट का जो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे, जिसमें सर ने मेंशन किया कि 30 मार्क्स आपका वर्कबुक के ऊपर है, पूरा का पूरा मार्क्स है वो 30 मार्क्स वर्क बुक है. अब आप पे डिपेंड है कि आप उसने किस तरह से उसको फिल किया है, साइन करवाया, कहीं आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है. लाइब्रेरी जो इंटर्नशिप जो आपको गाइड कर रहा है उसके साइन कराना जरूरी है. अब आता है कि जो इंटर्नशिप का रिपोर्ट जो आपको प्रिपेयर करनी है उसका एक फॉर्मेट आप देखेंगे कि अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ज्ञान कोश पे दिया हुआ है.
बट फिर भी उसमें हमने पहले कहा है कि आपको जो है वो 5000 वर्ड्स में, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखा, आप मैक्सिमम जा सकते हो, ऐसा नहीं है, डिपेंड करेगा क्योंकि टाइप ऑफ लाइब्रेरीज के ऊपर आपने क्या सीखा उसको, वो आपको ध्यान रखना है कि हमने कहा कि 5000 वर्ड्स में, और मिनिमम हमने स्टैंडर्ड किया है कि 20 पेजेस से अबव होने, 20 पेजेस से स्टार्ट हो जा सकते हैं आपकी। तो उसका जो फॉर्मेट होगा उससे सबसे पहला होता है कि आप उसका एक फॉर्मेट दिया, जैसे हम देखते हैं कि जब अपने पीजी स्टूडेंट या पीएचडी स्टूडेंट करते हैं तो एक जो उसका अगर आप बाइंड करवाते हैं, स्पायरल बाइंडिंग भी यूज़ करते हैं, एक फ्रंट पेज जिसको हम कहते हैं टाइटल पेज, लाइब्रेरी साइंस में हम पढ़ते हैं कि टाइटल पेज क्या होता है, बैक ऑफ टाइटल पेज, तो वो टाइटल पेज कैसा होना चाहिए वो हमारा फॉर्मेट दिया, उसमें हम सिंपली लिखते हैं स्टूडेंट का नाम और इंटर्नशिप का और ईयर और एनरोलमेंट नंबर, वो इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है, वो होगा आपका, उसको बोलते हैं टाइटल पेज आपका। उसके बाद में देख लीजिए जिस लाइब्रेरी से आपने इंटर्नशिप किए तो एक्नॉलेज तो उसको करना चाहिए, तो हमें उसको, ये ऑप्शनल है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट टाइटल पेज इज ए कंपल्सरी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आपने कौन से ईयर में, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका सुपरवाइजर, आप किस लाइब्रेरी से आपने इंटर्नशिप की है, टाइटल पेज के ऊपर। एक्नॉलेजमेंट इट इज ऑप्शनल है ना, बट देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, बट दे सकते हैं। दूसरा आता है कि एब्स्ट्रैक्ट है ना, अब जनरली हम क्या कहते हैं, जैसे पढ़ते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है ना, तो जनरली एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कि एब्स्ट्रैक्ट क्या कहता है कि सार, जिसको हम कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट है ना, सार किसका होगा कि जो आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रिपेयर करी है ना, आप कई बार क्या होता है एग्जामिनर को पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ने के बजाय आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेता है, उसको समझ में आता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत करी है उसमें ना, तो वो एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट को हम जैसे कहते हैं कि भी एक पेपर लिखते हैं, उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट यहाँ पर हम इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट हम लिखेंगे 200 वर्ड्स में, वो कितने क्या सीखा है आपने, उस समराइज करेंगे, समराइज में दोनों में अंतर है, समरी और एब्स्ट्रैक्ट में, बट यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट आपको एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करनी है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना है कि जो आपने 20 पेजेस आपने जो कवर करें, रिपोर्ट प्रिपेयर करें डिटेल में, उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट में फॉर्मेट के रूप में मेन कंपोनेंट आपको इंक्लूड करने, क्या सीखा है आपने अपनी लैंग्वेज, प्लीज ध्यान रखना है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है अपनी लैंग्वेज तो पूरा ही रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है आपको। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शंस का, हमने पॉइंट दिया है कि आपको इंट्रोडक्शंस मेंशन करा, अब इंट्रोडक्शंस में हम क्या मेंशन करें, इंट्रोडक्शन में हम जनरली मेंशन करते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं इंटर्नशिप है ना, उसकी इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपने सीखा क्या एक्चुअली है ना, वो हम इंस्टीट्यूशन समराइज इसको कह सकते हैं कि हम वर्क के अंदर समराइज में इंट्रोडक्शन में इंक्लूड आउटलाइन, ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका पर्पज क्या था, वो हम, और उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का इंट्रोडक्शन देते हैं, पर्टिकुलर लाइब्रेरीज का भी थोड़ा सा हम इसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि लाइब्रेरी के बारे। इसके बाद में आता है कि हम मॉड्यूल डिस्क्रिप्शंस दिया, जो मैंने कहा कि वर्क बुक के अंदर जो 4 मॉड्यूल्स हमने डिवाइड किए थे, लाइक फर्स्ट आपने कहा ऑपरेशंस की बात करी हमने, ऑपरेशंस के बाद में हमने सर्विसेज की, ऑटोमेशंस की, डिजिटाइजेशन की, जो 4 मॉड्यूल्स थे उनको हम डिटेल में मेंशन करते हैं। डिटेल के अंदर जो 4 मॉड्यूल जो वर्क बुक में आपने मेंशन किया था, वो रिपोर्ट में भी आपका जब जो मॉड्यूल डिस्क्रिप्शंस दिया है उसमें आप मेंशन करेंगे। तीसरा जो हमारा हेडिंग बनाएंगे, जिसको चैप्टर भी कह सकते हो, हेडिंग भी कह सकते हो, अबाउट द लाइब्रेरी। अबाउट द लाइब्रेरी कौन सी, जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो, क्योंकि उसी की रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो अबाउट द लाइब्रेरी मतलब उसके बारे में, लाइब्रेरी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। आप लाइब्रेरी के बारे में एक्सप्लेन में क्या फीचर होगा, जैसे मैं कहूँ कि एक लाइब्रेरी की क्या फीचर होगी, लाइब्रेरीज की क्या फीचर होगी, उसमें कलेक्शंस कितना है, उसमें सर्विसेज कौन कौन सी थी उसके अंदर, सर्विसेज आपकी, तो कलेक्शंस, मैन पावर आपकी है ना, उसके बारे में आप जिससे कहते हैं कि थोड़ा सा हम हिस्ट्री भी उसमें इंक्लूड करते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हिस्ट्री, लाइब्रेरीज की कब से एस्टेब्लिश, उसका नाम क्या था, तो उस तरह से हम उसमें मेंशन करते हैं। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग बनाएंगे उसमें लाइब्रेरीज के अबाउट द लाइब्रेरी, अबाउट द लाइब्रेरीज के अंदर हमने देखा कि हिस्ट्री आप लिखेंगे, कलेक्शंस आप लिखेंगे, लाइब्रेरी का कलेक्शंस कितना था, वो प्रिंट फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, वो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा ई रिसोर्सेज है तो उसमें मेंशन करेंगे, सर्विसेज आप मेंशन करेंगे ना, वो हमारा अबाउट द लाइब्रेरी वाले हेडिंग में डालेंगे। इसके आता लर्निंग आउटकम है, ये एक ऐसा है कि पर्टिकुलरली आप उस ड्यूरेशंस में आपने इंटर्नशिप में क्या सीखा है, लर्निंग आउटकम है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। कंक्लूजन्स जो हमारा है वो हम मेंशन, कंक्लूड तो आपको करना ही पड़े, किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो उन कंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सजेशंस आपको देना है,
कि सजेशंस एक पॉजिटिव अप्रोच में देने, क्योंकि वहां से आपने कुछ सीखा है, उस इंस्टीट्यूशन ने आपकी हेल्प की, वो जस्ट एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको एक हेल्पफुल है, वो भी एक एज ए टीचर, वैसे भी लाइब्रेरियन को टीचर ऑफ द टीचर्स कहते हैं मैंने, तो वो आपकी हेल्प की है, तो उसको हम थोड़ा सा सजेशंस यूजर्स के अप्रोच को ध्यान में रखते। कई बार क्या था, अभी जैसे हम कुछ रिपोर्ट देख रहे थे बच्चों की, तो वो जो अप्रोच उन्होंने सजेशंस दिया था, वो कहता है इमीडिएटली वहां पर रिसोर्सेज परचेज करना चाहिए या मैन पावर इमीडिएटली जो है लैब एस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो इस तरह से न लिख के उनको एक रिक्वेस्ट फॉर्म में, आप रिक्वेस्ट फॉर्म में सजेशंस दे सकते हैं, क्योंकि वो उस इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बेनिफिट होगा और आपकी रिपोर्ट में भी लगेगा कि इस बच्चे ने अच्छे से स्टैंडर्ड रिपोर्ट रखी। इसके बाद में हम उसमें एक चीज़ रेफरेंसेस जरूर आप इंक्लूड करेंगे। लास्ट हमारा इस जो रिपोर्ट का फॉर्मेट रहेगा वो रेफरेंसेस रहेगा। रेफरेंसेस आपको मेंशन करना। अब रेफरेंसेस आप बीएलआईएस के स्टैंडर्ड के रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे भी, तो आपको कोई स्टाइल ऑफ फॉर्मेट नहीं, ज़्यादा नहीं जानते, तो कोई भी फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते, एपी यूज़ कर लीजिए, शिकागो यूज़ कर लीजिए ने, क्योंकि आपने देखिए आपने कहीं ना कुछ चीज़ें तो आप उस लाइब्रेरी के लिए तो आपको रेफरेंसेस तो डालना। अब हम जनरली देखते हैं कुछ बच्चे नहीं लिख कर पाए, मोस्टली नहीं किया, बट आपको उसको ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट में हमारा आता है अपेंडिक्स। है ना, अब देखिए जनरली हम जब आगे डिस्कस कॉमन मिस्टेक में, तो अपेंडिक्स में क्या करेंगे आपको कि जैसे मैंने कहा कि फ्रंट जो टाइटल पेज था आपने उसका अपनी इंफॉर्मेशन दी, एक्नॉलेजमेंट आपने लिखा, इंट्रोडक्शन आपने लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद में आपने जो पर्टिकुलरली उसका अबाउट द लाइब्रेरी लिखा, फिर आपने लर्निंग आउटकम लिखा, फिर कंक्लूजन सॉल्यूशंस आपने लिखा। अब जो आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप उस लाइब्रेरी से लिया आपने, वो कहाँ लगाएंगे? वो सारे के सारे सर्टिफिकेट जो वर्कबुक से लेके आपकी, वो अपेंडिक्स में आप लगा सकते हो। तो ये एक स्टैंडर्ड आपको फॉर्मेट को ध्यान में रखना है कि जब आपको प्रिपेयर करना है, जो रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है इस फॉर्मेट में। So very detailed explanation of the internship report and everything now you know. We'll just briefly tell you about the evaluation criteria. Since you are preparing a report and you have undergone internship, you should also know how will you be evaluated. What is the criteria for evaluation? We have already told you 30 marks are reserved for workbook, 70 marks are for report, and within these 70 marks also, if you see here on your screen, you will see that for introduction we have reserved 5 marks, for module description 50 marks, 5 marks for learning outcomes, and 10 marks for conclusion and suggestions and presentation also. If you do a good presentation, you have marks for that also. And then please remember, presentation does not mean PPT. Some students have prepared PPT for present. No, not PPT. It is overall presentation of your report. Mind you, minimum pass marks is 50%. That is very important. Now we will go to very important part of the internship, that is the alternative to internship. Generally we prefer our students to do internship, but those who cannot do internship, they can do a library based survey or they can do a literature survey. We will quickly go over through these, then we'll have the questions and discussion with our students. The library based survey, you have to choose 5 libraries, since you are not able to continuously work 20 hours for every week. You cannot do that, therefore you have to survey 5 different libraries. We have given a structure in the eGyan course where you have to work on the history, mission, objectives, organizational structure of the library, collection of the library, status of automation, digitization, services. All these things you have to mention in the library based survey, conclusions, suggestions, and a references according to a particular style, and also appendix like the way you do it in internship. The other is literature survey. In literature survey, you have to choose a topic of your choice and do a literature survey. Read a good book on literature survey. We also have course material where you can read about literature survey, and we have given you some tentative topics. It is observed that all students who have done literature survey have chosen only these topics. This is just a tentative list. You can choose any topic of your choice. You do a good literature survey, prepare a report in your own words and present it accordingly, and therefore the structure should be abstract, introduction, aims and objectives, scope and limitations of your literature survey, methodology, themes and sub-themes, conclusion, suggestion, references, and also plagiarism check should be done. It should not be beyond 10%.
लिटरेचर सर्वे जो आप करेंगे उसको सिस्टमैटिकली प्रेजेंट कीजिए. इट शुड बी अ लिटरेचर सर्वे. वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट पीपल हैव नॉट डन ए लिटरेचर सर्वे. दे हैव जस्ट प्रेजेंटेड ए डिटेल ऑफ द टॉपिक ऑन विच दे हैव डन. Also, most of the students say we have taken it from the net, we have just viewed videos. No, that is not a literature survey. You have to read literature, write in your own words, put it as a continuous piece of literature, and thus it is very important to do it that way. Otherwise, it will not be accepted. The criteria for evaluation for literature survey is there is a viva voce. अगर आप लिटरेचर सर्वे करते हैं आपका वाइवा वॉसी होगा जिसके 30% मार्क्स हैं. 70% मार्क्स आर फॉर लिटरेचर सर्वे. आउट ऑफ दैट 5 फॉर इंट्रोडक्शन, 25 for module description, 5 for website and social media presence, and similarly about this is for library based survey, about the library 10, and conclusion suggestions 10, and 5 for referencing. And we have seen that people generally do not really stick to this guidelines. Therefore, we feel that when you think of improving yourself, you have to improve on the basis of on content, on structure, on format, on number of pages. Similarly for literature survey as well as for the library based survey. Now I'll just show you a good report that we have. एक सैंपल कॉपी हो. एक सैंपल कॉपी है जो हम आपको जस्ट दिखाना चाहते हैं कि देखिए इन्होंने कितना अच्छा. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज दे हैव बाउंड दिस रिपोर्ट. दे हैव पुट इट इन ए वेरी वेल बाउंड फॉर्म. लोग तो लूज शीट्स भी दे देते हैं जो कि इधर उधर गिर जाती हैं. पिंड शीट्स at times they come out of this. Therefore this is a bound one and a very well prepared title page wherein all details of the student and the supervisor are there. And then there is a content page. Generally it should not be index, it should be called content page. Pagination दिया हुआ है. फिर chapters हैं अलग अलग. Very well page numbers are marked, chapters are there. So they with diagrams, with photographs, these are all there. And just to show you the conclusion is there. Some pictures of the library are there, and this how they have got the report signed by the supervisor. So just as a sample we wanted to show you how they have done it. So now we will welcome questions from our students who are there in the studio as well as those who have joined us from different areas, and we would like to answer, we would like to know from you, we would like to interact with you so that we can improve the internship. Yes, please. You can have the mic. Yes, please. हाँ पूछिए प्लीज. सर मेरा नाम कुणाल गौरव है. हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ इंटर्नशिप के लिए कोई चार्जेस हैं क्या? हाँ देखिए चार्जेस बिल्कुल नहीं है. हमने क्लियर किया है इंस्टीट्यूशन को भी कि ना हम उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना लेंगे, ना हम हमारे स्टूडेंट्स जो है दिस इज जस्ट ए लर्निंग एक्सरसाइज. तो चार्जेस नहीं है. अगर कहीं बहुत ही रेयर केसेस में कुछ इंस्टीट्यूशन अगर चार्ज करते हैं तो वो बड़े मिनिमल चार्जेस हैं, जैसे ए फ्यू हंड्रेड्स. वो भी बहुत रेयर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनकी पॉलिसी है. अदरवाइज 99.9% इंस्टीट्यूशंस दे आर नॉट चार्जिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर इंटर्नशिप. थैंक यू सर. Hello, sir. My name is Twinkle Singh. As you said that the students can also go to the public libraries and do internship there, and you also said that the supervisor who is supervising the student is qualified and well informed with the actions of the library that is performing in it. लेकिन सर हम सबको पता है कि पब्लिक लाइब्रेरीज की जो कंडीशन है इंडिया में इज़ नॉट वेरी गुड. तो इज इट बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट टू गो टू द पब्लिक लाइब्रेरी एंड डू इंटर्नशिप देयर? हाँ देखिए इट इज ए जनरलाइज स्टेटमेंट. व्हेन यू से पब्लिक लाइब्रेरीज की कंडीशन अच्छी नहीं है तो इट इज फॉर यू टू मेक ए चॉइस.
ऐसा नहीं है कि सारी पब्लिक लाइब्रेरीज की कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरीज में जो आप सीख सकते हैं वो दूसरी तरह की लाइब्रेरीज में नहीं सीख सकते हैं, बिकॉज पब्लिक लाइब्रेरीज हैव देयर ओन टाइप्स ऑफ सर्विसेज, देयर इट्स अ डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंस, देयरफॉर यू शुड नॉट अवॉइड गोइंग टू, बट देन यू शुड सी वेदर यू हैव रियली स्कोप ऑफ लर्निंग इन दैट लाइब्रेरी. सो इट इज फॉर यू टू मेक ए चॉइस considering this as a matter of fact. Thank you, sir. हेलो सर, माय नेम इज़ पीयूष कुमार हरी. मेरा ये सवाल है सर कि क्या ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं उनको स्टूडेंट्स इन फ्यूचर जब वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो क्या वो इन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को एज अ वर्क एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं क्या इन फ्यूचर अपने जॉब पर्पस के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए, हाँ भी और नहीं भी, दोनों ही चीज़ हैं. देखा जाए तो इट इज रियली एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ. जो इंटर्नशिप है इट इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, बट इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूशन जहां आप जा रहे हैं कि वो उसको एज एक्सपीरियंस काउंट करते हैं या नहीं. फॉर्मली तो देखिए ये एक इट इज नॉट ए वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द सॉर्ट एज ए परमानेंट एज ए full time employee earns an experience, but still it is also an experience. मैं आपको बताता हूं, जब आप एज एन इंटर्न कहीं काम कर रहे हैं तो ये जो आपका रेपो डेवलप होता है वहां उनके साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. तो आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि इंटर्नशिप इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस, दो यू कैन नॉट क्लेम इट एज एन एक्सपीरियंस. मैं इसमें ऐड करना चाहूँ स्टूडेंट, इसमें को प्री एक्सपीरियंस कह रहे हैं उसको, एक्सपीरियंस नहीं, वो प्री एक्सपीरियंस है आपका, एक्सपीरियंस से पहले आपने. दूसरा, जनरली आप देखेंगे आपकी जो मार्कशीट हम जैसे यूनिवर्सिटी इग्नू भी इशू करती है उसमें एक इंटर्नशिप लिखा होता है. अब जो नए जो डीएमसी बनेगी, मार्कशीट बनेगी, उसमें जो कंपोनेंट लिखा होगा, जैसे कोर्स कोड लिखा होता है वैसे ये कोर्स है इसका नाम लिखा. अब जब इंटर्नशिप लिखा है तो आप देखिए रिफ्लेक्शंस हो रहा है कि स्टूडेंट ने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है. इसके बाद फिर वो आता है किस इंस्टीट्यूशन से किया है, फिर वो उसका आता है कि उसके पास सर्टिफिकेट रहेगा. जैसे मैंने कहा कि सर्टिफिकेट उनके पास है तो वो एक सीवी में रिफ्लेक्ट करेगा. जैसे जनरली जो फ्रेशर बच्चे होते हैं जैसे ग्रेजुएशन करके वो अपना सीवी बनाते हैं तो लिखते हैं ना स्किल्स कौन कौन सी उसके पास है ना. एकेडमिक स्कोर लिखने के साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या आती है तो वो एक नया कंपोनेंट आपको इंक्लूड, तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ. थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेटिव सेशन. माय नेम इज रुखसार. मेरा क्वेश्चन ये है कि रिपोर्ट इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद इनको हम स्टूडेंट्स को कितना टाइम दिया जाएगा अपने सबमिट करने के लिए रिपोर्ट? हाँ देखिए, ये तो हमारे यहाँ आपको पता है कि 2 बार एग्जाम्स होते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं एग्जाम से 3 महीने पहले अगर आपने सबमिट कर लिया तो उस साइकिल में आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो अदरवाइज तो देखिए 2 साल मैक्सिमम पीरियड है जिसमें आप अपना प्रोग्राम खत्म कर सकते हैं और फिर सक्सेसफुली कर सकते हैं. तो कोशिश कीजिए कि आप इंटर्नशिप करने के बाद अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे रखिए कि आप टाइमली इसको सबमिट करें जिससे टाइमली रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए. एक और क्वेश्चन है, ये जो रिपोर्ट है हमारी इसका भी प्लेगरिज्म चेक होगा इंटर्नशिप रिपोर्ट का? इसका इंटर्नशिप रिपोर्ट का, इस इंटर्नशिप रिपोर्ट का भी प्लेगरिज्म चेक होगा? हाँ बिल्कुल. प्लेजरिज्म इसलिए चेक करना जरूरी है क्योंकि आप चीजों को अपने वर्ड्स में लिखें, आप कॉपी ना करें, इसलिए प्लेजरिज्म विद इन 10% लिमिट्स होना ही चाहिए. एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास 20 पेजेस लिमिटेड है, मतलब इतने से नीचे नहीं जाना, 28 पेजेस से नीचे नहीं जाना, बट अबव कितने पेजेस जा सकते हैं? ये तो देखिए आपको डिसाइड करना है क्योंकि इंस्टीट्यूशन और इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जनरली आपको इतने पेजेस में इसको करना है. ठीक, थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर मेरा सवाल ये है कि मैं जैसे कि वो ये कोर्स खत्म होने के बाद भी मैं इंटर्नशिप वो कंटिन्यू कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं जी. तो देखिए बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के सवाल सुन के, और ये पता चला कि आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि इंटर्नशिप इज रियली ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अवर करिकुलम, एंड दिस इज रियली गोइंग टू एनरिच अवर एक्सपीरियंस, एनरिच अवर लर्निंग, एनहांस अवर लर्निंग, एंड विल ऑल्सो हेल्प अस टू परफॉर्म बेटर एज ए फ्यूचर library information science professional. You try to explore more and better areas. You try to explore varied
situations, environments where you can have different types of learning. Just don't stick to particular type of institutions also. We have told you that institutions of national repute, you can also have different types of work settings, the media libraries, the different libraries catering to different subject domains, law libraries, medical libraries. Our students are going to National Medical Library also, National Science Library also. So sky is the limit. You can go and work in any institution of repute and learn, and we wish you all the best so that you follow this standard operating procedure, do it in a proper way so that you get good marks also, because that is a reflection of how much you have really worked during internship. Wish you all the best. Thank you.